Hello everyone, welcome to this lecture on engineering physics. So last lecture we were discussed about metallic bonding and covalent bonding. So this lecture we will further go to the energy band of solid. Okay, we'll understand what is energy band in solids, and based on that energy bands we'll classify insulators, conductors and semiconductors. So let's start the lecture. So basically we'll start with band theory of solids. So to understand that, first of all we need to know कि जैसे कि हमने देखा था isolated atom. Okay, when we looked at isolated atom, so every atom has a nucleus and electrons surrounded by it, and electrons are present in the energy shells according to Bohr. Different energy, जैसे कि हम कह सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6. Okay, these are different energy levels wherein the electrons are present. ठीक है, तो अगर हम आइसोलेटेड के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि देयर आर discrete level of energy levels are present in an isolated atom. Okay, लेकिन जब हम solid की बात करते हैं, what actually solid is, it contains densely packed, okay, enormous amount of atoms होते हैं इसमें जो कि densely packed होते हैं एक crystal structure में. Okay, क्योंकि उनका interatomic distance बहुत ही कम होता है, इस वजह से क्या होता है कि there are chances that these two may interact. So basically, first of all, we need to know that a solid contains an enormous amount of atoms packed closely together. ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि we took two isolated hydrogen atom, okay, and when they are coming closer to each other, what happens is overlapping takes place and a molecular orbital is formed. Okay, so we can say that earlier there was only one energy level. Now, because of one more atom coming, there are two energy levels. Okay. Now suppose one more atom is there, then there will be three energy levels. So on. अगर हम n atoms को लेंगे तो हमारे पास में n energy levels होंगे, तो वो n energy levels एक band की तरह फॉर्म होंगे, उसको हम कहेंगे energy band. So जैसे कि हम कह सकते हैं कि when n atoms of the solid are well separated, then these atoms lead to n-fold degenerate levels of the solid. ठीक है, तो जैसे जैसे एटम अप्रोच करता है वन अनदर टू फॉर्म अ सॉलिड, द सेपरेशन रिड्यूसेस. ठीक है, जैसे एटम सॉलिड बनने की कोशिश करता है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ओके, एंड इंटरएटॉमिक स्पेसिंग और सेपरेशन विल रिड्यूस. अ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इंटरेक्शन ऑकर बिटवीन देम. जैसे कि मैंने कहा था कि इंक्रीजिंगली उनका जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एटम्स है वो एक दूसरे के पास में है. ओके, दिस कॉजेस each of the levels to split into n distinct levels. ठीक है, तो एटम्स के पास में आने की वजह से वो क्या होगा, n distinct levels में split हो जाएगा. It is a separation distance say r which specifies the amount of overlap that causing splitting. So basically जो interatomic spacing है वो डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ ओवरलैप होगा और स्प्लिटिंग कैसे होगा. ठीक है, तो बेसिकली सॉलिड कंटेन्स अबाउट 10 to the power of 23 atoms per mole. That is, n is very large. ठीक है, अगर मेरे पास में 10 to the power of 23 atoms हैं पर मोल, तो मैं कह सकता हूं कि वो बहुत ही लार्ज वैल्यू है. ओके, तो जो स्प्लिटेड एनर्जी है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा न्यूमरस हो जाता है, एंड दे बिकम क्लोज टू टुगेदर, एंड दैट दे फॉर्म एन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड. तो एक बैंड की तरह ये फॉर्म हो जाता है. ठीक है, देखो पहले हम आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, तो मेरे पास में सपोज करो मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूं. तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. ठीक है, तो मैं डिफरेंट एनर्जी लेवल बना सकता हूं कि आई विल पुट 1s2 बिलो, देन अबव इट विल बी 2s2, देन अबव इट विल बी 2p6, देन अबव इट विल बी 3s1. ठीक है, तो नाउ ये तो रहा कि मेरे पास में अगर सिंगल सोडियम एटम है. अब सपोज वन मोर सोडियम एटम इज देयर, सो इंस्टेड ऑफ वन की जगह पे अब मेरे पास में दो एनर्जी लेवल्स होंगे, यानी कि वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा. और जैसे तीन होंगे तो तीन का हो जाएगा, और इस तरह से अगर मेरे पास में 10 to the power of 23 एटम्स हैं पर मोल, देन इट विल फॉर्म अ कंटिन्यूअस बॉन्ड. ओके, सो द अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. ठीक है, अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. अगर हम बात करें लोअर एनर्जी लेवल्स की, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, सी जो इनर ऑर्बिटल रहते हैं वो इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं होते. हमारे पास में जो इफेक्ट होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में होता है या फिर आउटर ऑर्बिट्स में होता है. ठीक है, तो बेसिकली जो इनर ऑर्बिट है वो तो स्प्लिट होंगे नहीं, जो आउटर ऑर्बिट है दैट विल स्प्लिट.
Okay, so the amount of splitting is different for different energy levels. For example, the lower energy levels are found to spread or split less than the higher levels. जैसे कि मैंने कहा कि हायर एनर्जी लेवल्स में बेसिकली हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो इंटरेक्शन में ज्यादा हेल्प करते हैं इंस्टेड ऑफ द इनर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इनर इलेक्ट्रॉन्स. सो इट मीन्स दैट द लोअर एनर्जी रिमेन्स ऑलमोस्ट अनस्प्लिट. तो हम कह सकते हैं कि लोअर एनर्जी लेवल एक तरह से अनस्प्लिट ही रहता है. ओके, द रीजन इज दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर लेवल्स आर द वन विच आर इन द इनर सबशेल्स ऑफ द एटम. मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका है कि इनर सबशेल्स में ये एटम्स प्रेजेंट हैं. सो दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय एटम्स. ओके, so since the potential barriers between the atoms are relatively high and wide, these electrons are localized in particular atom even when r is small. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर है एटम के बीच में वो हाई होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोकलाइज होते हैं एक पर्टिकुलर एटम में. अगर मेरा इंटरएटॉमिक डिस्टेंस स्मॉल भी है तो भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इंटरेक्शन नहीं होता. However, the electron in the higher levels are the valence electron and are not localized for small r, but they become a part of whole system. Okay, the bands overlap when the atomic separation decreases. तो जितना जितना atomic separation मेरा decrease होता रहेगा, ये band आपस में क्या करेंगे, overlap करेंगे. Okay, so the allowed band corresponding to inner subshells are extremely narrow and does not begin to split until the interatomic distance r becomes less than the value actually found in the crystal. Okay, so as we move towards the higher energy states, the energy of the electrons becomes larger and also the region in which they can move becomes wider. Okay, so since they are also affected by the nearby ions, it is seen that the band becomes progressively wider for outer occupied subshells and also unoccupied subshells of the atoms in the ground state. तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, अगर मेरे पास में जैसे इंक्रीज मेरी एनर्जी इंक्रीज होगी, ओके, द सक्सेसिव अलाउड बैंड्स बिकम वाइडर. जो बैंड होगा, अगर मेरी एनर्जी इंक्रीज होगी तो बैंड क्या होगा, वाइडर बनेगा कि नहीं बनेगा. ओके, इट विल बिकम वाइडर एंड ओवरलैप ईच अदर इन एनर्जी. देयरफॉर वी कैन से दैट दीज एनर्जी बैंड्स आर नथिंग बट कॉरेस्पॉन्ड टू द एनर्जी लेवल्स इन एटम. तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी बैंड और कुछ नहीं, एक इंडिविजुअल एटम में अगर हम बात करें तो इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनर्जी लेवल्स. सो इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड कैन ऑक्यूपाई ओनली एनर्जी दैट फॉल्स विद इन दीज एनर्जी बैंड्स. दिस ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड. तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड पे भी डिपेंड करेगा कि किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी. ओके, इफ द बैंड्स डू नॉट ओवरलैप, अगर ये दोनों बैंड अगर ओवरलैप नहीं होंगे, देन द इंटरवल्स बिटवीन देम रिप्रेजेंट्स एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन्स इन अ सॉलिड कैन नॉट ऑक्यूपाई. These intervals are called as forbidden band और energy gaps. ठीक है, अगर कोई भी बैंड अगर मेरा ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है, तो उसका जो इंटरवल है उसको हम क्या कहेंगे, फॉरबिडन बैंड और एनर्जी गैप्स. ओके, हाउएवर इफ द एडजेसेंट बैंड्स इन द सॉलिड ओवरलैप, द इलेक्ट्रॉन पोजेस अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाउड एनर्जी. ठीक है, तो वो बेसिकली मुझे रेंज दे देगा कि रेंज ऑफ अलाउड एनर्जी क्या क्या है. नाउ लेट्स क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थियरी एज इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. देखो, जब भी मेरे पास में हमें ये ध्यान रखना होगा कि बैलेंस बैंड जो होता है बेसिकली किसी भी एटम में किसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे. तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड जो है वो मेरा कंप्लीटली फिल्ड रहता है और उसके ऊपर जो बैंड रहता है वो मेरा कंडक्शन बैंड रहता है. अगर वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है, ओके, या फिर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे, तो मैं उसको क्या कहूंगा, कंडक्टर. ओके, एंड व्हेनेवर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर्स. एंड व्हेनेवर दिस गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स. सो बेसिकली हाउ वी आर डिफाइनिंग इज द एबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो जब भी हम इसकी बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो यहाँ पे बैंड्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं. और जब मेरा एनर्जी लेवल कुछ कम है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है. लेकिन एनर्जी गैप अगर मेरा बहुत ज्यादा है, सो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दैट अ इलेक्ट्रॉन मे ट्रेवल टू दैट
मतलब उतना एनर्जी लेवल लेके इलेक्ट्रॉन वहां पे ट्रेवल करेगा। ओके, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स कहेंगे। सो इसको थोड़ा पॉइंट्स में लिखेंगे। इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिक पोजीशन। ठीक है, हमको पता है कि क्रिस्टल के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन की एक यूनिक पोजीशन होती है और कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेम पैटर्न नहीं होते। ठीक है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स सी एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग चार्जेस। बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद कंटिन्यूअस वेरिएशन फॉर्म्स what are called as energy bands। ठीक है, so energy band which includes the energy levels of valence electron। ठीक है, जो भी energy level of valence electron को represent कर रहा है that we call it as valence band। okay, and the energy band which is above the valence band is called as conduction band। okay, अगर कोई external energy नहीं हुई तो क्या होगा, all the valence electron will reside in the valence band। If the lowest level in the conduction band happens to be lower than the highest level of the valence band, the electron from the valence band can easily move into the conduction band। Basically इसमें ये कह रहा है कि दोनों overlap हो गए। ठीक है, so normally the conduction band is empty, but when it overlaps on the valence band, electron can move freely into it। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। अगर दोनों आपस में ओवरलैप है तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। So this is the case with the metallic conductors। okay, so next case is if there is some gap between the conduction band and the valence band, the electron in the valence band all remain bound and no free electrons are available in the conduction band। ठीक है, क्योंकि अगर एनर्जी गैप मेरा ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता। ओके, सो दिस मेक्स द मटेरियल एन इंसुलेटर। But some of the electrons from the valence band may gain external energy to cross the gap between the conduction band and valence band. Then these electrons will move into the conduction band. At the same time, they will create vacant energy level in the valence band where other valence electron can move। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। Thus the process creates a possibility of conduction due to electrons in conduction band as well as due to the vacancies in the valence band। ठीक है, तो केस 1 की अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन एज शोन इन फिगर 14.2a। ठीक है, तो ये फिगर देख रहे हो आप। ठीक है, तो यहां पे देखो, ध्यान से देखो, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दीज आर ओवरलैपिंग। ओके, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। सो द केस 1 सेज इज one can have metal either when the conduction band is partially filled or valence band is partially empty, or when the conduction band and valence band are overlap। When there overlap, electrons from valence band can easily move into the conduction band। This situation makes a large number of electrons available for electrical conduction। Okay, इस situation की वजह से क्या होगा, मेरे पास में large number of electrons present होंगे for electrical conduction। Okay, so when the valence band is partially empty, electrons from its lower level can move to a higher level, making the conduction possible। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो उस मटेरियल का लो होगा और कंडक्टिविटी जो है वो हाई होगी। ओके, केस 2 की बात करें, इन दिस केस अ लार्ज बैंड गैप Eg exists such that Eg is greater than 3 electron volts। There are no electrons in the conduction band and therefore no electrical conduction is possible। Okay, note that the energy gap is so large that the electron cannot be excited from the valence band to the conduction band by thermal excitation। This is the case of insulators। तो ये आपका बी पार्ट जो है वो इंसुलेटर्स के केस को बता रहा है, जहां पे एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन volts and the electron cannot travel from valence band to the conduction band। And case 3, if we talk about, the situation is shown in figure 14.2c, where a finite but small band gap Eg is less than 3 electron volts exist। Because of the small band gap at room temperature, some electron from the valence band can acquire enough energy to cross the energy gap and enter the conduction band। These electrons can move in the conduction band, hence the resistance of semiconductor is not high as that of the insulators। Okay, so this was for this lecture. Thank you.